तो पवन का नाम तो कैसे आपने फाइनलाइज किया? सी पवन का जो मेरे पोस्ट प्रोडक्शन जहाँ मेरा हो रहा है, पोस्ट हाउस करके है, तो वहाँ के जो ओनर है उनका पवनदीप से बहुत अच्छा दोस्ती है, बहुत अच्छा। अच्छा रिलेशनशिप है। तो जब उन्होंने ये गाना सुना इन द पोस्ट प्रोडक्शन, तो उन्होंने कहा कि मैम आप एक बार पवनदीप को सुन लीजिए। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स सुनेंगे, सो लेट मी। बट एज आई सेड, एक कंडीशनिंग होता है माइंड का। वी आर सो यूज टू एग्जिस्टिंग साउंड्स दैट व्हेन आई हर्ड इट फर्स्ट, अचानक से स्ट्राइक नहीं करता है, बिकॉज वो आपके विजन से हल्का सा कहीं ना कहीं फर्क होता है। हम्म। तो but then it's not advisable to take a call at first instance. So then I said, give me a day, let me visualize the whole song in his voice. And then I remember puri raat I kept listening to Ishqbazi, and I kept listening to the voice of Pavandeep, and morning I had my answer that Okay. nobody can do justice better than Pavandeep for Ishqbazi. And there he was. That's he is a blessed singer. He is a blessed musician. अब आई होप आप जानती हो कि वो उन दुनिया के अजूबों में से एक है जो तबला भी बजा सकता है, एट द सेम टाइम गाना भी गा सकता है। आर यू अवेयर जी ऑफ इट जी इवन? जी। In fact, I'll share a little. I write very fast. In fact, sorry, I considered that I write very fast. Pavandeep आया recording के लिए, so he said कि मैम I'll write the. I said I'm writing the lyrics. He said नहीं नहीं मैम आप हमको दे दीजिए. The speed with which he was writing the lyrics, I was taken aback, and my self perception वहां पे shatter हुआ. I said नहीं, you write much faster. So with his writing speed and the way he was focusing. In fact, I told Pavandeep after ki Pavandeep, I need that paper to be with me so that I can always preserve that, because it is not how you sing, it is who you are. And that is what makes the difference as an artist, as any human being, as any professional. तो पवनदीप में आई हैव, मेरे पहले भी बहुत सिंगर्स लोग गाए, सब बहुत अच्छा गाते हैं, सबकी अपनी खूबियां होती हैं। और पवनदीप का जो डेडिकेशन लेवल है, हिज रेवरेंस टुवर्ड्स हिज क्राफ्ट is something I really admire, and I think that is what is reflected, because of which he has such huge admirers out there. And बहुत ही simple, बहुत ही down to earth, बहुत प्यारा बच्चा है। दैट इज, आई मीन, ही इज अ ब्लेस्ड चाइल्ड, बहुत ही प्यारा बच्चा है। आई एम स्टिल इन टच विथ हिम, आई कीप चैटिंग विथ हिम बिकॉज इट फील्स कनेक्टेड। वंस यू स्पेंड टाइम विथ हिम, रूना जी, यू रियलाइज कि लोग उसको इतना क्यों मोहब्बत करते हैं। इट्स ओनली व्हेन यू स्पेंड टाइम विथ हिम, यू स्पीक टू हिम, इधर उधर कुछ नहीं, द होल कंसंट्रेशन एंड फोकस इज ऑन द सॉन्ग। एंड वो लिख रहा है लेकिन उसके दिमाग में सारा कुछ चल रहा है कि इसको गाना कैसे आए। So he is a multitasker. He is blessed. I think that's the only word which I can tell for Pavandeep. He is blessed, but I just pray and I hope that he stays this way even after achieving the zenith of success, because ये जो blessing है, वो blessing ही है जो उसके expression में आता है. So I think and I'm sure the person he is, he'll never forget that. आई एम श्योर, आई एम श्योर। कब तक गाना लाने का मूड है आपका, और फिल्म कब तक आ जाएगी? देखिए अभी तो सारी बातें चल रही हैं, ओटीटी से चल रही हैं। इनफैक्ट वी आर प्लानिंग टू रिलीज इट ओवरसीज एज वेल. So Karma Meets Kismat will be releasing in UK, and but it's a little early because I don't have the dates yet, but very soon. And I'll keep everyone posted. I have a very important meeting somewhere this coming week for the UK release, but it's certain that we are releasing it outside India as well, So because the within सिक्स subject. मंथ्स, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर या सेकेंड Yes, हाफ? yes, yes. I अच्छा। think mid पकड़ के चलते हैं. हाँ। Yes, so we are all looking forward to it because the story is differentiated. Everybody has come together. बहुत प्यार से मोहब्बत से ये फिल्म बनी है. फरीदा जलाल जी हों, अलका अमीन हों, संजय मिश्रा जी, everybody has
एक 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 बहुत सारा, जब आपको मोहब्बत मिलता है ना तो कुछ बहुत खूबसूरत सा निकल जाता है। तो इनफैक्ट फरीदा जी जब लास्ट डे जा रही थी शूट से, तो शी हैड टीयर्स इन हर आईज एंड शी सेड कि गीतांजलि ये स्पेशल था। सो आई डोंट नो ईश्वर की क्या कृपा है, क्या ब्लेसिंग्स है, बट जितने लोग भी जुड़े हैं वो बहुत ही अपने क्राफ्ट को रेवर करते हैं। कहीं भी एरोगेंस, ईगो कुछ नहीं है। वी आर ऑल आर्टिस्ट एंड इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ द हायर पावर्स दैट वी हैव बीन ब्लेस्ड विद सर्टेन क्राफ्ट्स। एंड अगर वो लोगों को अच्छा महसूस कराने के लिए यूज किया जाए तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, एक बहुत अलग बात पूछ रही हूँ। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मेरी हिंदी स्ट्रांग है। आपसे जितने समय से मैं बात कर रही हूँ, आपकी हिंदी बहुत सुंदर नजर आती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। पवनदीप की अगर मैं बात करती हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उसकी भी हिंदी बहुत साफ है। एक साफ हिंदी बोलने वाला सिंगर जब हिंदी में गाना गाता है तो कितना अंतर आता है, ये एज अ डायरेक्टर मैं या राइटर मैं आपसे जानना चाहूंगी। सी म्यूजिक को अगर डाइसेक्ट किया जाए रुनाची, तो एक तो ट्यून होता है, एक जो मेलोडी होता है, उसे शब्द की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली आपके आत्मा तक पहुंच जाती है। लेकिन जब उसी ट्यून को, उसी मेलोडी को आप शब्दों से निखारते हैं, शब्दों को उसमें डालते हैं, तो वो एक एडेड टूल आ जाता है लोगों तक पहुंचने के लिए। अगर सेम मेलोडी में कई शब्द डाले जा सकते हैं और हर शब्द का मतलब अलग निकलेगा, तो एक सिंगर के लिए हर वर्ड आप किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक तो क्लैरिटी हो गई कि अगर क्लियर नहीं होगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप गा क्या रहे हैं। सो क्लैरिटी इन एनी कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट सिंगिंग, बी इट राइटिंग, बी इट ओरेशन, एवरीवेयर। सो वर्ड्स नीड रिस्पेक्ट, दे डिजर्व रिस्पेक्ट। So from that perspective, thank you. I think for any person who has been given this opportunity to express, and a lot of people's emotions are linked to that expression, one has to be very careful. One has to be aware of that responsibility that one holds. आपके एक शब्द से जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल। तो आप उस शब्द को कैसे यूज कर रहे हैं, किस इंटेंट से यूज कर रहे हैं। अब क्या होता है एज अ फिल्म मेकर, अगर सम एक्टर सेज अ डायलॉग, वो डायलॉग के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो एक्चुअली वो कितना फील कर रहे हैं। तो देन वी हैव टू गो बैक एंड से कि नहीं सर, इसमें वो फीलिंग नहीं आ रही है। अब इट इज अ वेरी 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 सब्जेक्टिव थिंग, बिकॉज फीलिंग को आप परसेंटेज में नहीं डाल सकते कि नहीं। नहीं आप यहाँ पे एंगर फील कर रहे हैं तो नहीं, ओनली सर 20% एंगर आ रहा है। सो एज अ पर्सन हु हैज एनविजन्ड सर्टन रिजल्ट आउट ऑफ राइटिंग, आउट ऑफ म्यूजिक, आउट ऑफ स्टोरी, एक विजन है, और वो इंसान को पता चल जाता है कि वो वहां तक आ रहा है कि नहीं। सो सिमिलरली जस्ट एज एन एक्टर नीड्स टू फील दैट इमोशन। अब सपोजिंग बोलते हैं अच्छा हम चलते हैं, अच्छा हम चलते हैं, अच्छा हम चलते हैं। सो एवरी वर्ड, एवरी एक्सप्रेशन इज a huge responsibility as an artist that you hold on your shoulder. बिल्कुल। So, apart from the pronunciation, apart from the clarity, वो तो basic है. हम्म। If you cannot respect the language, don't speak it. So, from that perspective, you have to respect. See, अगर कोई इंसान, ऐसे भी सबको अच्छा बोलना चाहिए, अच्छी क्लैरिटी के साथ बोलनी चाहिए रुना जी, लेकिन जब बहुत सारे लोग आप पे नजर रखे हैं, बहुत सारे लोगों की आशा आपसे जुड़ी है, तो आप जो कहते हैं वो सुनते हैं। तो तो उस हिसाब से द एक्सप्रेशन, द क्लैरिटी, द इंटेंट, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, एंड इफ यू आर ऑनेस्ट विथ योर एक्सप्रेशन, वो सीधे दिल तक पहुंचती है। दैट इज व्हाट आई बिलीव पर्सनली। And so for every artist, it's very important to have a command on the language and hold on the words. चलिए, आपकी वजह से मुझे ये मालूम पड़ा कि पवन की
राइटिंग बहुत बहुत फास्ट है, ये बात अरे तो मैं भी सच नहीं में जानती थी। बहुत बहुत he writes so fast and I didn't want to, I was quietly observing him, I didn't want to disturb him at all. जल्दी जल्दी लिख रहा था, जल्दी जल्दी. And then I said I told myself I'm going to preserve this for myself. So I told him, but he's focused. Even if he does two things, three things together, he knows कितना किसमें concentration लगाना है. He knows he is very apt with his management. इतनी सारी तारीफ सुन के मैं सच बोल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो पवन के चाहने वाले हैं, उनको पागलों की तरह प्यार करते हैं, आई एम श्योर वो तो बिल्कुल चांद तक पहुंच गए होंगे। And he deserves it. He deserves it. He truly deserves it. बहुत प्यारा बच्चा है. चलिए, थैंक्स लॉट इतना समय देने के लिए, इतनी सुंदर बातें हमसे It's शेयर my करने के pleasure. It's my honor, Runaji. Thank you so much. And please wish and pray for Karma Meets Kismat. लिए। Thank you बिल्कुल so बिल्कुल much. बिल्कुल। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Thank you.